A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we focused the two important chapter of your syllabus. The chapter is, the first topic is issue of share. Thereafter, the call scenario on the share, and thereafter we discuss the forfeited of the share which are based on the issue at par and issued at premium. Thereafter we discussed the reissue of the forfeited share, and at last how we will find out the amount transferred to capital reserve after the forfeited of after the reissue of the forfeited share. यानी पहला जो टॉपिक है जो जिसपे मुझे फील हो रहा है, आई फील दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव अ कंफ्यूजन अबाउट दैट इज एन इशू ऑफ शेयर। यानी शेयर इशू होता है, फिर एरियर होता है, फिर उस शेयर को फॉरफीट करते हैं, देर आफ्टर फॉरफीटेड शेयर को हम रीइशू करते हैं, एंड एट लास्ट वी फाइंड आउट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। And the second topic is the preparation of cash flow statement as per accounting standard 3. Most of the students are also doubt regarding this topic, so that's why in the last few videos we focus the two topics, that is an issue for feature and reissue of share, and thereafter the second topic is preparation of the cash flow statement as per the AS3. So in this video we solve uh, 2 to 3 practical problem related to the cash flow statement, जिसमें कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ पूरा जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को मिलेगा। ओके, सो let's start the today's video, let's start the today's class, because from the board examination point of view as well as from the revision test point of view, it is very important to understand how we will prepare the cash flow statement, because in the revision test 1 paper 5th of accountancy we asked the two chapter mainly. The first one is the preparation of cash flow statement and number 2 the ratio analysis. तो रेशियो एनालिसिस में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं हाउ कंपनी प्रिपेयर्ड इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ कंपनी क्लासिफाइड इज कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन द डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पे पहले भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है डिटेल में, so let's we take the one numerical problem related to the financing activity. So the question is question number 15. From the following information, calculate net cash flow from financing activity. And in this question, equity share capital is 4 lakh for the previous year, and current year is 6 lakh. 10% debenture पे अगर हम लोग ध्यान दें तो 10% डिबेंचर इज अ, पहले था 1 लाख अब हो गया 0। नाउ 8% डिबेंचर इज पहले 0 यानी प्रीवियस ईयर 0 एंड करंट ईयर इज 2 लाख। एडिशन इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज, interest paid 13,000, dividend paid 40,000. So it is very simple how we will calculate the calculation of cash flow from financing activity। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के इशू एंड रिडम्पशन पे फोकस करना पड़ता है। जैसे पहला लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पहले था 4 लाख, नाउ इट विल बी 6 लाख। तो आपने इशू कितना किया, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख, पहले था 4 लाख एंड नाउ इट विल बी 6 लाख। नेक्स्ट डिबेंचर, तो 10% डिबेंचर पहले कितना था 1 लाख एंड नाउ इट विल बी 0, so it is called redemption of debenture. Redemption of debenture will be a 1 lakh क्योंकि इससे पैसा जाएगा। This is in question number 15. Please do not get confused. Next is a 8% debenture. This is a 10% debenture. Now आपने 8% debenture issue किया, so issue of 8% debenture, and the value of the 8% debenture is 2 lakh. And additional information में दो information given है, that is interest paid and dividend paid. Both the items are cash outflow. So interest paid क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंड डिविडेंड पेड को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट बोथ आइटम डिनोट द कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फर्म। सो इंटरेस्ट पेड किया आपने 13,000
एंड डिविडेंड पेड किया आपने 40,000. सो एट लास्ट वी फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगर आंसर प्लस में आएगा तो इट विल बी नोन एज द कैश इनफ्लो, एंड अगर आंसर माइनस में आएगा तो इट विल बी नोन एज द कैश आउटफ्लो. तो उसको हम ऐड और लेस कर लेते हैं. 2 लाख 2 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस में है, माइनस में 153 माइनस में है. सो योर आंसर विल बी अ 7. 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, and 3 में से 1 गया 2. So your answer is 2,47,000 in positive. So it will be known as the cash flow from financing activities. So ये छोटा सा क्वेश्चन था, and I hope it is clear for you how company calculate its cash flow from financing activity. अगर ये प्लस में है so it will be known as the cash flow from financing activity. अगर आंसर माइनस में आता तो it will be known as the cash used from financing activity. So please note down the solution of the question book 15 in your copy properly, and thereafter we will move to the next question. Next question which are related to the preparation of the cash flow statement. इस क्वेश्चन में हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे. Okay, so let's we move to the next question. Are as follows. The balance sheet of Shilpa Tires Limited as on 31st March 2017 and 18 are as follows, and the information is given amount 31st March 2017 and amount 31st March 2018. मैं देख लूँ पहले इसमें कोई गलती नहीं. ये क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से प्रिंटेड भी है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. यानी 2017 का अमाउंट क्लियर है और 18 का क्लियर है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई थी कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू करंट ईयर में दे दिया था और करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर में दिया था. ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं. क्वेश्चन में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल 1,60,000, रिजर्व एंड सरप्लस 7,250 एंड 85,300, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज 10%, डिवेंचर 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 एंड 40,000, करंट लाइबिलिटीज 28,000 एंड 48,000, एसेट्स नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट्स 1,52,000 2 लाख. इसका मतलब है कि जो आपने एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर किया है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है. वाई? बिकॉज यू नो वेरी वेल जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वी डू नॉट चार्ज द डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द एसेट्स अकाउंट. फॉर द डेप्रिसिएशन वी प्रिपेयर्ड अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. करंट एसेट्स इन्वेंट्री 93,400, 89,200, trade receivable 30,800, 21,100, prepaid expense 3,950 and 3,000, cash and cash equivalent 28,100 and 20,000. Let's we take the additional information. As you can see that on screen, the following additional information for the year 2017-18 are also given. नेट प्रॉफिट 27,050 क्लियर दे दिया. नेट प्रॉफिट कितना है? 27,050 रुपए. मान लो नेट प्रॉफिट नहीं देता, हम कहां जाते, कहां से कैलकुलेट करते? देखो बेटा, जब भी नेट प्रॉफिट नहीं देता तो सिचुएशन में हम नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस से पता करते. बिकॉज यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होती है? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द शेयर होल्डर फंड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेड. Depreciation 10,000, cash dividend declared during the period 12,000. कैश डिविडेंड हमने डिक्लेयर कितना किया है? 12,000 डिक्लेयर्ड, 12,000 डिक्लेयर किया है. एंड एन एडिशन टू द बिल्डिंग वाज मेड, हमने एडिशनली बिल्डिंग परचेस किया है. बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. कॉस्ट कितने का था? 78,000. फुल्ली डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000 वाज डिस्कार्डेड. नो सैल्वेज बिंग रियलाइज्ड. मतलब बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 30,000 उस पे उसको हमने सोल्ड कर दिया और उस पे हमें कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ. अब आपको फाइंड आउट करना है क्या? प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें देखिए एक वर्ड लिखा है फुल्ली डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000. फुल्ली डेप्रिशिएटेड, ध्यान से सुनना. फुल्ली डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जिस पे पूरी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, यानी उसकी वैल्यू कितनी थी? 0.
यानी उसकी फुल्ली डेप्रिशिएशन का मतलब है उसकी कॉस्ट भी 30 है और डेप्रिशिएशन भी कितना है 30, मिला कितना 0। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, लिखा है and fully depreciated building costing 30,000 was discarded, no salvage being realized, उससे कुछ मिला नहीं, यानी आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ एसेट को सेल करते वक्त 30,000। इज दैट क्लियर? तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने से पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? दैट इज यस एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि उसके बिना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो लेट्स वी मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्टली वी प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसको फटाक से नोट कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सो फिक्स एसेट्स अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, और कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस क्वेश्चन में जो कि दे दी हैं, लेकिन जनरली अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको गिवन नहीं होंगे, ये चीज याद रख लीजिए। जैसे फिक्स एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन होगा क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्स एसेट्स का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दैट इज 1,52,000। क्लोजिंग है आपका 2 लाख। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? ओपनिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज 60,000, क्लोजिंग इज 40,000। यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नाउ हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। इसमें क्लियरली दे दिया डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना चार्ज किए? 10,000। ठीक है, नहीं दिया होता तो हम निकालते। जेड क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है? कैश डिविडेंड से मतलब नहीं है। एक बिल्डिंग थी जिसे हमने परचेस किया 78,000 रुपीज में, एंड बिल्डिंग हमने परचेस किया कितने का? 78,000 रुपीज का। तो बिल्डिंग हमने परचेस किया, तो बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स टू बैंक 78,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर? इसे हम लोग किस नाम से दिखाते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया? 10,000 रुपीज का। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एसेट्स है जिसको हम इमीडिएट सेल कर रहे हैं। कितने का एसेट था? 30,000 रुपीज का, वो भी फुल्ली डेप्रिशिएटेड, यानी उस पर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेस टिल द डेट ऑफ द सेल, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उस पर? टू फिक्स एसेट्स टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 30,000, और इट विल बी ट्रांसफर टू दिम दिस। तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से कितना बैलेंस आएगा? 30,000 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम हमें कितना पैसा मिला सर? 0, कुछ नहीं मिला। और आपको मैंने ये भी बताया था प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। बट अगर आप खुद ही सोचो 30,000 की एसेट थी, 30,000 डेप्रिसिएशन हुआ, कितनी वैल्यू हो गई? 0। मिला भी कुछ नहीं, तो वैल्यू भी 0 थी, मिला भी कुछ नहीं, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देखो ये इक्वल आएगा 70 और ये 70। जनरली क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता, इस क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि 10,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का है 10,000। नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करते 10,000 बैलेंस करके, 70 60 माइनस हो जाता, 10,000 आ जाता। और इधर भी जनरली परचेस गिवन नहीं होता। ये जो मैंने परचेस किया है ना फिक्स एसेट्स, जैसे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर डी में, एन एडिशन टू द बिल्डिंग वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 78,000, ये भी गिवन नहीं होता। ये आपको निकालना पड़ता, कैसे? बैलेंस करके। आप खुद कैलकुलेट करो। इधर आ रहा है 2,30,000, इधर भी कितना आना चाहिए? 2,30,000, देखना आएगा 2,30,000। तो जनरली यहाँ पे लगभग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सर इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो परचेज जो किए हो ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो होता है।
आपने जो एसेट सेल की उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर कोई वैल्यू होती तो उसको क्या लेते हैं, इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है इसको हम लोग क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन जो है इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो इस अकाउंट का काफी यूज है, ठीक है। तो हम ये अकाउंट आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अब मैं चलता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बताया था, उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब मैं चल रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि इस अकाउंट में जो कुछ था मैंने आपको समझा दिया। लेट्स वी मूव टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप पहले लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कंपनी का नाम भी लिख देना, ऑफ, कंपनी का क्या नाम है, ऑफ शिप्रा लिमिटेड। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इफ यू कैन सी दैट सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, और जो ऑलरेडी गिवन है एडजस्टमेंट नंबर 1 में। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 27,050 रुपीज। उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कितनी वैल्यू होगी सर, डेप्रिसिएशन अभी आपने देखा ही था, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। कितना डेप्रिसिएशन था, 10,000। और मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर कितने का है, यू कैन सी दैट डिवेंचर बिगनिंग में कितना था 50,000, अब कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू नहीं पता होता है कि रिडम्पशन कब हुआ है या एंड कब हुआ है, तो उसको हम लोग कब मानते हैं, एट द एंड ऑफ द। दैट्स वाई यहाँ पे इंटरेस्ट पेड कंसीडर होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल जब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि रिडम्पशन कब हुआ है, जैसे आपने पहले डिबेंचर था आपका कितने का 50, अब है उसकी वैल्यू जीरो, इसका मतलब आपने पूरा डिबेंचर रिडीम कर दिया है। तो अगर डेट नहीं दिया है कि रिडम्पशन कब किया है, तो आप क्या करते हो, उस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट कितने में पे करते हो, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द डिबेंचर इज 50,000, 50,000 का 10% कितना आएगा, दैट इज अ 5,000, दैट इज 50,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ है इस क्वेश्चन में, सर नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज जीरो, क्योंकि कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड किसी भी तरह की कोई बात यहाँ पर क्लियर नहीं है। सो दिस इज अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस विल बी 42,050 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी करंट लायबिलिटी दी है, करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 28, करंट ईयर की वैल्यू है 48, इट मींस क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने की, 20,000 रुपीज की। तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। करंट एसेट्स में आइए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की वैल्यू अगर आप देखो दैट इज प्रीवियस ईयर 93,400, करंट ईयर 89,200। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो यू नो वेरी वेल जब भी करंट एसेट डिक्लाइन होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिफरेंस कितना आएगा, 4,200। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में देखो, सो यू कैन सी दैट 30,800 फॉर द प्रीवियस ईयर, 21,100 इज अ करेंट ईयर। सो यू कैन सी दैट कि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल कितना ऐड हो रहा है, दैट इज 9,700, ओके। और नेक्स्ट वन इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि कैश इन कैश इक्विवेलेंट तो हम कंसिडर करते ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 3,950, नाउ 3,000, ये भी डिक्लाइन कर रहा है, वेरी गुड। तो सब चीज़ें ऐड ही होंगी और इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, दैट्स वाई दिस इज योर आंसर, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज अ आंसर, ओके। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पे कितना आएगा,
ऐड करने पे आएगा आपका 71,900 प्लस 515 प्लस 5,000 76,900. I hope the first answer is 76,900. ये आपका आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ओके, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो हमने इस क्वेश्चन में क्लियरली देखा है कि हमने परचेज कितना किया था. हमने बिल्डिंग परचेज किया था, परचेज ऑफ बिल्डिंग 78,000. अकाउंट बनाया था ना, उस अकाउंट से वी कैन सी दैट 78,000 रुपीज का हमने बिल्डिंग परचेज किया था. और सेल भी तो किया था. यस सर, कितने का सेल किया था? 0. हमने अपना बिल्डिंग सेल किया था, सेल ऑफ बिल्डिंग. वो भी कितने में बिल्डिंग सेल किया था? उसकी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी थी? 0. तो यहाँ आप नील लिख कर भी कंसीडर कर सकते हो और इंप्रेशन देने के लिए. So this is a B total, and this is called cash used from investing activity. This is a cash flow from operating activity. This is a cash used from investing activity. That is 78,000. Number C. Number C is a financing activity. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मैंने आपको समझाया था कि when we calculated the cash flow from financing activity, we look upon the two things, that is the share capital and non-current liability. तो शेयर कैपिटल में अगर क्वेश्चन में देखो तो पहले शेयर कैपिटल कितने की थी? 1 लाख. नाउ इट विल बी 1,60,000. पहले 1 लाख रुपए की थी और अब कितने की हो गई? 1,60,000 रुपए की. तो ध्यान से समझना, हमने इशू किया शेयर कैपिटल 60,000 रुपीज का. कैसे? 1,60,000 माइनस 1 लाख. इज दैट क्लियर? उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखो तो 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, और उसको हमने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर. पहले कितने का डिबेंचर था सर? पहले डिबेंचर था 50 का, अब कितना हो गया? 0. इसका मतलब आपने पूरा डिबेंचर रिडम्पशन कर दिया, यानी इनफ्लो हुआ 60,000, आउटफ्लो हुआ 50,000. सर अभी भी कुछ बचा? यस, आपने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर पे. सो इंटरेस्ट paid will be a 5,000. Okay, as well as adjustment number C, cash dividend declared during the period 12,000. आपने cash dividend कितना पे किया है? That is 12,000. तो उसको भी आप लोग क्या करोगे? कंसीडर करोगे. दिस इज नोन एज डिविडेंड पेड. अब देखो आपके मन में होगा सर इंटरेस्ट पेड आपने ऐड किया है लेकिन डिविडेंड पेड ऐड नहीं किया है. देखो, इंटरेस्ट पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये कहाँ चार्ज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हो तो उसमें इंटरेस्ट पेड को कंसीडर करते हो एज अ फाइनेंस कॉस्ट. डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ द एप्रोप्रिएशन. इट इज कंसीडर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल. जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं उसके बाद हमारे पास जितना प्रॉफिट बचता है उसमें से हम डिविडेंड देते हैं. यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें डिविडेंड कंसीडर नहीं करते. ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई है क्योंकि हमने बैलेंस शीट से टच नहीं किया है. बैलेंस शीट की अगर प्रॉफिट देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस करंट वैल्यू कितनी थी? 70,250 और करंट वैल्यू कितनी थी? 85,300. ठीक है, इट मीन्स हमने ये जो प्रॉफिट लिए वो कहां से लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिए, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है. हमने इसको रिजर्व एंड सरप्लस से टच नहीं किया है. अगर रिजर्व एंड सरप्लस से टच करते तो हम इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करते, डिविडेंड भी ऐड करते. लेकिन हमने इस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट से लिया है तो सिर्फ पीएल अकाउंट के आइटम्स ही ऐड होंगे. जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होता है इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पेड जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है. ठीक, तो डिविडेंड हमने कितना पे किया है? दैट इज 12,000.
that is 12,000. So interest paid is also outflow, dividend paid is also outflow. तो total outflow कितना हुआ इस क्वेश्चन में? 60, 50 and that is a 12, 55 and 12, 67, 67 that is a 7,000 outflow. कितना आया आपका? 7,000 outflow from financing activity. I want to telling you कि जो 27,000 50 रुपए आया, it was also given in the question the net profit during the year. इसमें ऑलरेडी डिविडेंड ऐड है. अगर ऐड नहीं है तो आप चेक कर लो एक बार क्वेश्चन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिफरेंस है उसमें अगर आप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड पेड ऐड करते हो तो इट विल बी नोन एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम which takes as the net profit during the year under the operating activity. Okay, so आपने यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल तीनों को ऐड करते हैं. अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो लिखते हैं नेट इंक्रीज, नेगेटिव में आता है तो क्या लिखते हैं? नेट डिक्रीज. तो मुझे पता है कि तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यू कैन सी दैट 78,700 85,000 माइनस में आ रहा है. तो ये आंसर क्या आएगा? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज A plus B plus C दैट इज माइनस कितना आ रहा है? 85,000 minus 76,900 that is 00148. Difference is 8,100. Yes, it is a correct. Net decrease in cash and cash equivalent is 8,100. इसमें हम लोग क्या करेंगे? फिर ऐड कर देंगे. क्या ऐड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे. कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बिगनिंग का? 30,000. That is 28,100. Okay, so we find out cash and cash equivalent at end, that is 20,000. So you can see that हमने क्या किया? First of all we calculate the net profit during the year. अगर नहीं दिया होता तो हम निकालते. जैसे मैंने बताया कैसे निकालते? रिजर्व का डिफरेंस निकालते, फिर उसमें ऐड करते तीन चीज: टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नॉट गिवन, डिविडेंड इज गिवन सो इट इज विल बी एडेड एंड टैक्स इज आल्सो नॉट गिवन. तो टैक्स को भी छोड़ दिया तो आ गया 2050. बट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी कृपा दी गई है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि क्वेश्चन ने डायरेक्टली आपको प्रॉफिट बता दिया. प्रॉफिट आपने लिया, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिडक्ट किया, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया. इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, दैट्स व्हाई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी टेकन एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंसीडर किया. इसमें हम लोगों ने बिल्डिंग का परचेस, बिल्डिंग का सेल कंसीडर किया. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने शेयर इशू को कंसीडर किया, डिबेंचर के रिडम्पशन को इशू किया, इंटरेस्ट पेड को कंसीडर किया और डिविडेंड पेड को कंसीडर किया. ठीक है, फिर तीनों को ऐड किया. सो वील फाइंड आउट कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, दैट इज 8,100. द टोटल ऑफ 76,900 minus 78,000 minus 7,000, so it becomes minus 8,100. और फिर उसमें ऐड किया कैश इन कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग. सो वी फाइंड दैट द कैश इन कैश इक्विवेलेंट इन, आप देख लो ये दोनों अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट इन द एसेट साइड. एसेट साइड में ऑलरेडी गिवन है. बिगनिंग में कैश इन कैश इक्विवेलेंट है 28,100. देख लो ध्यान से, आपके क्वेश्चन में ये बिगनिंग में गिवन है और ये एंड में गिवन है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 8,100. वो भी आपके आंसर को चेक कर सकता है कि आपका आंसर कितना आएगा. बट इसके लिए आपका ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर और फाइनेंसिंग का आंसर सही आना चाहिए. ओके, सो यू कैन सी दैट in this video firstly we solve the questions related to the
source of fund and uses of fund, that is the source of cash and uses of cash from the investing activity related to the non-current investment, as well as we discuss the question related to the cash flow statement. In this question, we see that how we will calculate the net profit before tax and extraordinary item, and thereafter we see that how we will prepare the fixed assets account and accumulated depreciation account from the given information. So I hope it is clear for you. और आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I request to all the students, please solve the practical problem given in your book. Okay, take care.